Okay, so first of all, a very good evening to all of you. So today we are going to start with the UPSC 2020 actual passage discussion, the comprehension of the critical reasoning passages discussion of the 2020. Hope you have solved the passages. Okay, I have conveyed you on the WhatsApp, on Telegram also, that there is a discussion of 2020 and 21. We will try to complete 2020, and if the time permits, we will also continue with the 2021 also. Okay. So the first passage, passage number 1. Probably I think in the introductory lectures we have solved this passages, first 2 and 2 passages, but we'll take that again. Okay. In India, over last decade or so, labor has been departing agriculture. So agriculture से labor क्या हो रहा है? कम हो रहा है. But it is only going to the construction or unregistered manufacturing, which is not markedly better jobs. Services where the labor tends to be the most productive and are not generating the initial jobs in the country. Okay, country in this. India will need 24 million jobs over the next decade, and the new sector e-commerce, and again what he has said, e-commerce और क्या है, will only fill the only half of the jobs. Those sectors drive domestic demand such as health and education can comfortably fill the other half. तो comfortably जो है, so education and health है वो इस gap को fill up कर सकते हैं. Okay, so what is the best implied in the passage? So which passage is the best implied in the passage? Okay, strong measures need to be taken to reduce the rural to urban migration. Passage has talked about migration? No. The working condition in the construction unregistered manufacturing needs to be improved. The passage is about working condition? No, it is about the economy, it is about the generation of the jobs. Okay. Service sector has been reducing the problem of unemployment. Reduce कर रहा है क्या? अरे इनफ जॉब जनरेट हो ही नहीं रहे. What he is going to say, the service sector, service which labor tends to be most productive are not generating the additional jobs in the country, not generating. So how you can say that they are have been reducing the problem of unemployment? कर रहा है क्या वो reduce? नहीं. Increased social spending is imperative for the large scale job creation. So how the social sector spending when we have to health and education में हम लोग ये कंफर्टेबल फील आपको कर सकते हैं, तो और हेल्थ और एजुकेशन के लिए आपको क्या करना होगा? स्पेंड करना होगा ना पैसा. हाँ. सो द क्वेश्चन इज अबाउट द इम्प्लाइड मीनिंग. ओके, हियर इज द क्वेश्चन इज अबाउट द इम्प्लाइड मीनिंग. इम्प्लाइड मीनिंग इज व्हाट? It is always, most of the time, the question of implied meaning is talking about the future. Implied meaning किसके बारे में बोलता है? फ्यूचर में क्या करना चाहिए. Okay, most of the time देखिएगा आप. Okay, हमेशा नहीं होगा, but most of the time implied meaning is what? It is what it's talking about the future step what you can do. That is nothing but an implied meaning. Assumption is what? The thing on which the conclusion is dependent. Conclusion is the main view of an author, and the application of the conclusion is the implied meaning. Application of the conclusion is what? Implied meaning. Okay, so what? Okay, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? फोर्थ. Got it? In India, the current focus on the right to privacy is based on some new realities of the digital age. A right is substantive right only if it works in all situations. So right ये substantive right होता है जब वो हर situation में work होता है, और हर किसी के लिए वर्क होता है. A right to free expression for an individual about exploitation, for instance, is meaningless without an actual ability of the security guarantees the private force cannot be used to throw his right. The role of state therefore is not just abstain from the preventing rightful free expression, but also actively ensures the private parties not be able to block it. Okay, तो किसका राइट ब्लॉक भी नहीं करना चाहिए और उसको राइट का ये होना चाहिए. करेक्ट ना? हाँ. तो पैसेज नंबर 2. सो व्हाट इज योर आंसर? Which of the following is an assumption of the passage? तो कौन से assumptions होगा? पैसेज का क्या होगा? Assumptions होगा. Okay. State should have some institution to ensure its appropriate role in the digital society. ठीक है. The question is about what? Assumption. Okay. Question is about what? Assumption. What he has said. इंडिया में क्या है? करंट फोकस जो है वो डिजिटल एज में राइट टू प्राइवेसी को एक वैल्यू है, जरूरत है कि राइट टू प्राइवेसी मेंटेन हो. ओके, अगर राइट प्राइवेसी हर वर्क में काम करेगा तो ही वो राइट टू प्राइवेसी है, मतलब डिजिटल एज में भी उसने राइट टू प्राइवेसी होना चाहिए. राइट ऑफ फ्री एक्सप्रेशन फॉर इंडिविजुअल about her exploitation, for instance,
is meaningless without the availability of security guarantees. The private force cannot be used to destroy his right. सपोज वो होता है राइट ऑफ फ्री एक्सप्रेशन है, खुद का व्यू एक करना है, तो जब तक उसको सिक्योरिटी नहीं मिलेगा तब तक उसको क्या यूजलेस है, बराबर है ना. सो इसीलिए अब स्टेट का रोल जो है, ओके, केवल फ्री एक्सप्रेशन से अब्सटेंट रहे ये नहीं है, बट ऑल्सो उसको सिक्योरिटी मिले कि वो आदमी बगैर डरे राइट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अप्लाई करे. ओके, तो वो क्या होगा, उसको कोई फ्रीडम जो है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है कोई ब्लॉक नहीं कर सकता. इसका भी दैट मींस द स्टेट शुड गारंटी द सिक्योरिटी आल्सो. तो स्टेट ने क्या करना चाहिए, सिक्योरिटी भी गारंटी करना चाहिए. सो सेम भी बोलता है राइट टू प्राइवेसी अप्लाई होता है किसके ऊपर, तो जिस तरह से हमने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे ये चीज अप्लाई होती है उसी तरह से राइट टू प्राइवेसी पे भी अप्लाई होगी. ओके, इन द डिजिटल एज द स्टेट शुड हैव सम इंस्टीट्यूशन टू इंश्योर एप्रोप्रिएट रोल इन डिजिटल सोसाइटी. तो स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसका प्राइवेसी का भंग ना हो, बराबर, प्राइवेसी को कॉन्ट्रडिक्ट ना हो. सो दैट्स व्हाई देयर शुड बी इन सम इंस्टीट्यूट, हो सकता है. स्टेट शुड इंश्योर दैट द प्राइवेट पार्टीज डू नॉट वायलेट द सिटीजंस राइट टू प्राइवेसी. यस, स्टेट ने इंश्योर करना चाहिए कि प्राइवेट पार्टीज जो है वो पार्टीज को वायलेट ना करे. ओके, यस, हाँ. डिजिटल इकोनॉमी नॉट कंपेटेबल विद द आइडिया ऑफ नॉन वायलेटिंग सिटीजंस प्राइवेसी. कंपेटेबल नहीं है, ये होगा क्या, नहीं. तो आंसर क्या आएगा, 1, A and C. Okay. One of the biggest ironies around the water is that it comes from a river and the other wetlands. Okay, so one of the biggest ironies जो है water का वो क्या है, it is वो river से आता है और other wetland से भी आता है. Yet it is seen as a diverse from them, but फिर भी ये इससे क्या है, diverse देखा गया है. While water is used as a resource, public policy does not always grasp it is the part of natural ecosystem. Okay, so what he has said, so most of the ironies है कि वाटर की कहाँ से आता है, रिवर से आता है. ओके, फिर भी उसको रिवर्स या वेटलैंड से डाइवर्सली कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वाटर जब पब्लिक पॉलिसी में एज अ रिसोर्स यूज किया जाता है, ओके, तो उसे नेशनल इकोसिस्टम का पार्ट नहीं समझा जाता. Efforts at engineering the water system are thus effortless at augmenting the water supply rather than strengthening the capacities of the ecological system. तो वहां क्या बोलता है, efforts at engineering the water system are thus efforts at augmenting the water supply. ओके, इसलिए जब भी वाटर सिस्टम को डेवलप करने का होता है तो केवल किस पे फोकस किया जाता है, वाटर सप्लाई कैसे इंक्रीज किया जाए, बराबर है, बट इकोलॉजिकल सिस्टम का कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस नहीं किया जाता. तो इकोलॉजिकल सिस्टम का कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस करना चाहिए. तो क्वेश्चन इज अबाउट द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस ऑफ द पैसेज. तो क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट, मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस ऑफ द पैसेज. Rivers and other wetlands should be protected under the Ramsar Convention. Rivers and other wetlands should be protected under the Ramsar Convention. Ramsar Convention कोई मेंशन है क्या? अब यहाँ पे जीएस का आंसर सॉल्व कर रहे हो क्या रे? हाँ, तो यहाँ पे कोई जब रामसर कनेवेंशन मेंशन ही नहीं है तो आंसर आएगा क्या? इंजीनियरिंग वाटर सिस्टम शुड बी मॉडर्नाइज्ड एंड फर्दर ऑर्गुमेंटेड. वो बोल रहा है, वही वो बोल रहा है, ठीक है, बट इकोसिस्टम मेन पैसेज अबाउट क्या है कि इकोसिस्टम को भी ध्यान में रखिएगा. ठीक है, हम होल्ड देखते मॉडर्नाइज करेंगे, मॉडर्नाइज करना चाहिए वाटर सिस्टम के ऊपर. कैसे मॉडर्नाइज करेंगे, सो वी हैव टू गिव द वैल्यू टू द इकोसिस्टम. हम लोग होल्ड रखते हैं इसको. वेटलैंड नीड्स टू बी रीइंफोर्स एज मोर देन जस्ट ओपन सोर्स ऑफ वाटर. यस, सो इकोसिस्टम को वैल्यू दिया मतलब क्या, वेटलैंड के ओपन सोर्स ऑफ वाटर ना समझते हैं पूरी तरह से इकोलॉजिकल इसके ऊपर ये करना चाहिए. वाटर सप्लाई शुड बी नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट. वाटर सप्लाई फ्री नहीं होना चाहिए और मिसयूज और ओयूज रुकने के लिए उसके बारे में पैसेज है ही नहीं. बैच इकोनॉमिक सिस्टम को वैल्यू देना चाहिए. तो बेटर आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी यार, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा ना. यस, हाँ, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट, asset allocation is the most important investment decision we make, and sadly most of us do not give the decision importance it deserve. और asset allocation को जो importance दिया जाना चाहिए वो हम लोग नहीं देते हैं. ठीक है, we are adamant about the seeking predictability with our future. We tend to think of investing in the risky asset as extremely volatile and value eroding. We also dislike the fluctuating returns and the loss of control of the investment. We think our money is best left idle, unproductive but a safe. There is no asset that is risk free. We could lose our jobs, our homes, and can lose value, or our bank and go bankrupt. Our banks default, the government can collapse, and companies choose fondly may cease to exist. But we cannot live life assuming that all these extreme events are waiting to happen. And all the same time, all these extreme forces or risks we know
will not manifest at the same time. Okay. So चलो एक बार फिर से देखते हैं इसको क्या बोलता है वो। जो asset allocation जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है हमारा, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन। हम जब भी डिसीजन लेते हैं तो एसेट एलोकेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, बट वो बोलता है कि सैडली हम लोग इतना उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते। एक्चुअली वो उसको देना चाहिए पर आप लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते। वी एडमेंट अबाउट सीकिंग प्रेडिक्टेबिलिटी विथ अवर फ्यूचर। वी टेंड टू थिंक इन्वेस्टिंग रिस्की एसेट एज एक्सट्रीमली वोलेटाइल एंड वैल्यू इरोडिंग। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि रिस्की एसेट हमेशा क्या होती है, वोलेटाइल होती है एंड इरोडिंग होती है। सो वी डिसलाइक द फ्लक्चुएटिंग रिटर्न, इसलिए हम लोग फ्लक्चुएटिंग रिटर्न को डिसलाइक करते हैं। ओके, वी थिंक आवर मनी बी लेफ्ट आइडल अनप्रोडक्टिव, और इसलिए हम लोग क्या सोचते हैं कि हमेशा हमारा मनी क्या है, चलो ठीक है बैंक में पड़ा रहे, फालतू कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, उससे अच्छा क्या रहा है आइडल पड़ा रहे, बराबर है ना। पर बोलता है एक्चुअली से देखा जाए तो कोई भी एसेट रिस्क फ्री नहीं है। आपका बैंक में कल बैंक डूबेगी तो क्या होगा, करेक्ट ना। श्रीलंका में क्या हुआ, सबने हाथ ऊपर कर दिए तो क्या उसमें फिर बोल रहा है तो ऐसा तो किसमें रिस्क नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग जॉब भी हमारा जा सकता है, हमारा घर भी हम लोग ये कर सकते हैं, बैंक बैंकरप्ट हो सकती है, बराबर है, गवर्नमेंट कोलैप्स हो जा सकती है, करेक्ट ना। ऑल द थिंग्स व्हिच हैव हैपेंड इन श्रीलंका। ओके, बट वी कैन नॉट लिव लाइफ अज्यूमिंग दैट ऑल दीज एक्सट्रीम इवेंट्स आर वेटिंग टू हैपन। लेकिन हम लोग ऐसा सोच के लाइफ जिंदगी जी सकते हैं क्या, नहीं। तो उसका बोलना है कि रिस्क है तो रिस्क है, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। ओके, हाँ, तो ऑल दिस एक्सट्रीम फॉर्म रिस्क वी नो नॉट मैनिफेस्ट एट द सेम टाइम। बोलता है हर सब रिस्क एक साथ आएगी क्या, नहीं। सो व्हाट इज द इम्प्लाइज अगेन, तो दैट मीन्स अगेन इम्प्लाइज इज व्हाट यू विल डू इन फ्यूचर। फिर क्या रिस्क लेना पड़ेगा, ये आपको एक है। हाँ, तो बेटर वे क्या है, द डिस्ट्रीब्यूट योर वेल्थ अक्रॉस द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसेट सो दैट योर रिस्क वुड बी मिनिमाइज्ड। हो सकता है रिस्क टेकिंग बिहेवियर शुड बी नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी इफ यू वांट टू जनरेट अ वेल्थ। हो सकता है ये भी। ओके, हाँ, while making investment find a trustworthy asset management organization which would manage your wealth for you. No, you should know investing your money is risky business. अरे वो उल्टा बोल रहा है कि रिस्क लो, बट व्हाट ही इज गोइंग टू से, वो बोलता है आप कहीं पे भी लॉस हो सकता है, आपका जॉब जाएगा, आपका घर ही हो जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी, कंपनी खराब हो जाएगा, जिसमें काम करते हैं वही हो जाएगी, जिसपे इन्वेस्ट वही हो जाएगी। बट बोलता है बट वी कैन नॉट लिव लाइफ अज्यूमिंग दैट ऑल दिस एक्सट्रीम इवेंट आर वेटिंग टू हैपन एट ऑल द सेम टाइम। बोलता है सब चीजें एक साथ, सब नेगेटिव चीजें एक साथ थोड़ी होगी, ऐसा होगा क्या, नहीं। सो दैट मीन्स व्हाट, बेटर आंसर क्या होगा कि आप क्या करो कि डिफरेंट काइंड में करो कि एक दो चीजें डूब भी गई तो दूसरे एक साथ सभी होएगा क्या, नहीं होगा। तो एक दो चीजें डूब भी गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके, दूसरा चीज उसको सवार लेगा, करेक्ट ना। सो हर चीज जो खराब चीजें नेगेटिव चीजें एक साथ थोड़ी होगी इसके अंदर था। सो बेटर वे आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर 1। इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। गॉट इट, हाँ। अभी आपको कुछ कैसे लग रहा है, अभी 2020 का पेपर सॉल्व करें एंड दिस कंसीडर वन ऑफ द टफेस्ट पैसेजेस। ओके, टफेस्ट कंसीडर कर रहे हैं पैसेजेस, बट अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको पैसेज सॉल्विंग में, बिकॉज वी आर एट द एंड ऑफ अवर मॉड्यूल ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन ना। तो अब लग रहा है क्या चेंज, ओके। और कई लोग तो अभी लेक्चर्स को मिस भी कर रहे हैं। क्या होता है कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम तो ये है कि एक टाइम के बाद कॉम्प्रिहेंशन बोरिंग लगने लग जाता है कि वो क्या वही सॉल्व करो, वही थ्योरेटिकल डाटा ये है वो है, और वही मैथ्स रीजनिंग कैसे इंटरेस्टिंग लगता है, अलग अलग टॉपिक से, डिफरेंट टॉपिक से ना। कॉम्प्रिहेंशन में क्या 15 दिन एक ही टॉपिक चल रहा है हमारे पास, सॉल्व करो, अजम्पशन, कंक्लूजन एंड व्हाट द पैसेज इंप्लाई, दैट इज व्हाट ये है। बट रीजनिंग मैथ्स का आपको बहुत से रिसोर्सेस अवेलेबल है, बट कॉम्प्रिहेंशन के लिए रिसोर्सेस नहीं है। तो उल्टा कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो इसलिए और कॉम्प्रिहेंशन का बहुत ज्यादा रोल है जो अब लोग क्वालिफाई नहीं हो रहे इसमें। तो इसका अभी आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आपको सॉल्व करते आना चाहिए एग्जांपल, ओके। तो इसको लाइटली मत लीजिएगा। हाँ, अगेन पैसेज नंबर 5, डिफिकल्ट पैसेज। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड crop cultivated now are genetically engineered for a single trait in the future, crops genetically engineered for more than one trait will be a norm. ओके, सो क्या हो रहा है कि मोस्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप है, ओके, वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड है फॉर अ सिंगल ट्रेट इन द फ्यूचर है, ओके। तो जो क्रॉप्स है जेनेटिकली इंजीनियर्ड फॉर मोर देन अ ट्रेट विल बी, ये नॉर्म हो जाएगा। 10 biotechnology's role in agriculture and regulations or the same cannot be understood solely on the context of the current generation of the genetically modified crop. तो अभी के ऊपर से बायोटेक्नोलॉजी का रोल आप लोग जनरेट नहीं कर सकते, ओके। सो अभी बोल रहे हैं कि जैसे अभी ऑलमोस्ट जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को कल्टीवेट हो रहे हैं वो एक सिंगल ट्रेट के हिसाब से ही क्या चल रहा है, और इसीलिए
बोल रहा है ऐसा चल रहा है, पर वो बोल रहा है कि फॉर मोर देन वन ट्रेड, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा कि एक से ज्यादा ट्रेड्स के लिए ये क्या होंगे, क्रॉप जनरेट होंगे। ओके, सो इसलिए अभी के बेसिस पे आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का या बायोटेक्निकल का रोल अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम लोग केवल सिंगल इसके ऊपर ही चल रहा है। इंस्टेड देयर is need to take a comprehensive look taking into the account various aspects including socio-economic impact, potential, and or the technology can be harnessed by minimizing the negative impacts, and given the importance of the biotechnology in the developing varieties that can help climate change mitigation adaptation, not using biotechnology as a part of climate change action plan and cannot be an option. Domestic regulation of biotechnology cannot be viewed as an isolation of the trade policy and obligations under various international treaties and the conventions. Okay, so which of the following assumption has been made? तो कौन सा assumption हम लोग इससे कर सकते हैं? So which of the assumption can be made? Biotechnology regulation is an evolving process. बराबर है, बिकॉज वो है ना, अभी के बेसिस पे हम लोग नहीं कह सकते, कल अलग नॉर्म्स आएंगे, देन ऑल दिस फ्यूचर में चेंज होगा। दैट मींस व्हाट, बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशंस आर दी इवॉल्विंग प्रोसेस। पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इज नीडेड इन डिसीजंस regarding the biotechnology regulation, maybe, okay, participation of the people is needed in the policy decisions. Technology given importance biotechnology developing varieties, climate change mitigation cannot be नहीं है ना, सोशल इम्पैक्ट है, बट पीपल का नीडेड है पार्टिसिपेशन, होल्ड रखते हैं, चलो बी को होल्ड करेंगे। बायोटेक्निकल रेगुलेशन शुड बी टेक अकाउंट सोशल एस्पेक्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग, करेक्ट, वो बोल रहा है सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, ये तो होगा ना, इज टॉकिंग अबाउट द सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस एंड ऑल द पोटेंशियल ऑफ द टेक्नोलॉजीज एंड हार्नेस्ड एंड ऑल दिस थिंग्स, यस। हाँ, वाइडर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिक्स का एग्जीक्यूटिव का इन्वॉल्वमेंट, डी क्या होगा, नहीं होगा। तो डी अगर नहीं होगा तो वैसे ही क्या हो जाएगा, उस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का इन्वॉल्वमेंट जो है वो रेगुलेशन में रहा तो इंप्रूव होगा इफेक्टिवनेस। तो डी तो वैसे ही नहीं होगा, तो आंसर नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 होगा। हाँ, यस यस, व्हाट इज डाउट विलास, हाँ आए ध्यान में। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंप्लाइज इन द पैसेज, व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द पैसेज, बेस्ट इंप्लाइज द क्रक्स ऑफ द पैसेज, क्रक्स मींस व्हाट, सेंट्रल थिंग, क्या बोला, पेक्यूलियरी प्रिंसिपल इज नॉट गिवन इंपॉर्टेंस इन द करंट डिबेट ऑन द डेवलपिंग द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ओके, तो इसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स को। सो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स आर नॉट गिवन इंपॉर्टेंस इन द करंट डिबेट, ओके, हो सकता है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, नॉट गिवन इंपॉर्टेंस, तो इंपॉर्टेंस किसको दिया गया, निगेटिव टर्म्स मोस्ट ऑफ द टाइम क्रक्स का पार्ट या सेंट्रल थीम का पार्ट नहीं होते, वी हैव सीन दैट, निगेटिव टर्म्स नहीं होते, तो ठीक है, फिर भी हम लोग होल्ड रखते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इज नॉट करंटली यूज्ड इन द क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, अभी तक यूज किया नहीं जा रहा है। Biotechnology's role is not confined to the current priorities of the developing genetically modified crops, हो सकता है, हाँ, the negative impact of non-biotechnology are properly understood. Better answer is what, biotechnology's role is not confined to the current priorities of the developing genetically modified crops, okay, so the answer is 3, okay, हाँ, so 6 में से कितने करेक्ट है आपके। नेक्स्ट, private investment in general is a volatile, foreign private investment is more volatile because the available investment avenues are significantly greater, therefore the responsibility of the providing employment cannot be left to the foreign direct investment. The current FDI inflows are volatile over the time across the sectors and the regions. What necessary consequence of their search for highest returns? The adverse consequences are unstable employment, accentuation of the income in the regional inequalities. A probable positive consequence of the foreign investment is inflow of the new technologies and its subsequent diffusion. However, the technology diffusion is not at all certain because existing state of physical and human capital in India may prove inadequate for the diffusion. Which of the following assumptions have been made? तो कौन से assumption करेक्ट होंगे, ओके, relying on FDI foreign investment in the long term is not economically sound policy, बराबर है,
policies must be undertaken to reduce the volatility of the foreign investments. Yes. Next, policy must be undertaken to strengthen the domestic private investment. Must be undertaken to strengthen the domestic private investment. No. पब्लिक शुड इन्वेस्टमेंट शुड बी गिवन प्रायोरिटी ओवर द प्राइवेट. ये बोला क्या उसने? अरे पब्लिक को इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ शुड बी अंडरटेकन. यस. हाँ, ए और ई तो कहीं है नहीं ना. वी विल सी देन व्हाट विल बी द आंसर. हाँ देखो क्या बोल रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज अ वोलाटाइल, फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज मोर वोलाटाइल. ठीक है, बिकॉज अवेलेबल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज आर सिग्निफिकेंटली ग्रेटर. पूरे वर्ल्ड में एवेन्यूज है तो इधर से निकालेगा. देयरफॉर रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी लेफ्ट टू द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. द एफडीआई इनफ्लोज आर वोलाटाइल ओवर द टाइम. ओके, necessary consequence of their search for highest returns. The adverse consequences are unstable employment, accentuation of the income in the regional inequalities. A probable positive consequence of the foreign investment is the inflow of the new technology and subsequent diffusion. Higher technology diffusion not at all certain because existing state of physical and human capital in India may prove inadequate. So last para important है. Because existing state of physical and human capital in India may prove inadequate for the diffusion. Relying on foreign investment in long term बराबर है policies taken to reduce volatility of the foreign private investment. हाँ, तो policies to be taken करना चाहिए strengthen the domestic private investment होगा. हाँ, so domestic investment होना चाहिए प्राइवेट. फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल्स इन इंडिया ना. तो टेक्नोलॉजिकल आएगा तो उससे कुछ फर्क बोला ये नहीं होगा कि हमारा जो है वो एडुकेट डिफ्यूज करने के लिए है ही नहीं. बराबर है. हाँ हाँ तो एडवर्स कॉन्सिक्वेंस क्या क्या होते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के? अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट होती है, रीजनल इनक्वालिटीज बढ़ती है. ठीक है ना. हाँ, उससे न्यू टेक्नोलॉजी आती है बट वो बोलता है कि इंडिया में वो वर्क नहीं कर सकता बिकॉज व्हाट एज इट फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल जो है इंडिया में, बराबर है ना, वो डिफ्यूजन के लिए इनएडुकेट और टेक्नोलॉजी वर्क नहीं कर सकती. ओके, सो क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट अजम्पशन. उसने अज्यूम क्या किया है? क्वेश्चन अबाउट द अजम्पशन. हाँ, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये नहीं है. हाँ, policies must be undertaken to reduce the volatility of the volatility in the foreign private investment. Okay. Policy must be taken under to. हाँ ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या? पॉलिसी के बारे में देखो. यहाँ पे क्या आया? पॉलिसी हमने कोई फ्रेम करना चाहिए, तो पॉलिसी फ्रेम करने के बारे में इतना बोल रहा है क्या वो? हाँ, तो दैट्स वाई ये नहीं होगा. बट डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक को ये करना चाहिए. यस. हाँ, पब्लिक इन्वेस्टमेंट शुड बी गिवन प्रायोरिटी ओवर द प्राइवेट. पब्लिक इन्वेस्टमेंट से ज्यादा प्राइवेट को प्राइवेट से उल्टा वो क्या हो रहा है कि डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ. पब्लिक के बारे में नहीं है, डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाना चाहिए. हाँ, सब्सटेंटिव पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ शुड बी अंडरटेकन. तो अभी देखो यहाँ पे, हाँ प्लीज, हाँ बराबर है आपका. ए और बेटर आंसर क्या होना चाहिए? ए और सी ज्यादा बेटर है, बट ए और सी के ऑप्शन में है क्या? नहीं. दूसरा वो क्या बोल रहा है कि अभी का हमारा ह्यूमन कैपिटल और ये जो चीजें हैं, ये आज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अगर आता है फॉरेन इन्फ्लो के साथ में तो उसको कोप अप नहीं कर पाएगा. यस. सो इसलिए अगर हमको यहाँ पे जनरेशन करना है, जॉब जनरेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना होगा क्योंकि इनइक्वालिटीज बढ़ता है, दैट टाइम वी मस्ट फोकस ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन. इतना नहीं आता है ये, पर कोई ऑप्शन नहीं है इसमें. ओके, सो इट्स बेटर दैट वी मस्ट टेक एन आंसर एज एन ऑप्शन नंबर 2, A, C and E. Next, most rational and practical implications for India. कौन से most rational and practical implications है?
many opportunities to harness the highly skewed seasonal and spatial distribution of monsoon flows, which occur 4-month period from June to September annually, have been lost. Since these few months account for most of the rainfall and the consequent freshwater availability, the need of holding rainwater reservoirs subsequently releasing use over the year is necessarily nobody can afford to overlook. Climate change will continue to affect the weather condition and create a water storage and excesses. While millions suffer from the drought and flood, water in the country may rivers flow unutilized, the discharge into the sea every year. Okay. So now what is the most rational and practical implications? Okay. Again, implication is what? Implication में मतलब क्या होता है, ये सबसे डिफिकल्ट में assumption सबसे इजी क्वेश्चन कौन सा आता है? मोस्ट रैशनल एंड लॉजिकल इन्फरेंस सबसे इजी, बिकॉज वो डायरेक्टली पता होता है आपको. उससे थोड़ा डिफिकल्ट होता है अजम्पशन वाला. अजम्पशन वाला क्या होता है? थोड़ा बिट डिफिकल्ट. और सबसे डिफिकल्ट कौन सा लगता है? इम्प्लीकेशंस. ओके, व्हाट इम्प्लीकेशंस? ओके, सो इम्प्लीकेशंस के ऊपर है. ओके, तो 2020 में इम्प्लीकेशन क्या है? तो इम्प्लीकेशन इज अबाउट द एप्लीकेशन. क्या बोल रहा है वो? Many opportunities harness a highly skewed seasonal and spiritual distribution of the monsoon flows. Okay, so monsoon के कारण कई चीजें जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मानसून फ्लो से कई अपॉर्चुनिटीज जो है वो इफेक्ट होती है. ओके, जो मानसून होता है वो क्या होता है? जून और सितंबर में आता है. ओके, हाँ. तो सिंस दिस फ्यू मंथ्स अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द रेनफॉल, ये मोस्ट ऑफ द ईयर का रेनफॉल केवल इस मंथ में ही आता है हमारे पास में. And the consequence of freshwater availability, the need of the holding rainwater reservoir subsequently releasing over the year is nobody can afford to overlook. इसलिए कोई भी इसको overlook नहीं कर सकता. Climate change will continue to affect the weather condition and create a water shortage and excesses. Okay, so climate change जो है वो weather condition को क्या करता है? Affect करता है, और उससे क्या होता है? Water shortage और excesses create होते हैं. While millions suffer from a drought and flood, एक इधर तो क्या हो रहा है कि लोगों को drought और flood से कई लोग इफेक्ट हो रहे हैं. दूसरे इधर लोग क्या कर रहे हैं? मोस्ट ऑफ द यूनिटल वाटर सी में भी जा रहा है. बराबर है ना? सफर फ्रॉम द ड्रॉट एंड फ्लड. एक इधर क्या है कि बहुत ज्यादा फ्लड है, एक इधर क्या है? ड्रॉट है एट ए टाइम इंडिया के अंदर. मोस्ट ऑफ द यूनिटल वाटर भी कहां पे जा रहा है? सी में जा रहा है. ठीक है ना? हाँ, तो अभी ऐसे इसमें हमने क्या करना चाहिए? इंटरलिंकेज ऑफ द रिवर शुड बी अंडरटेकन. हो सकता है थोड़ा एक्सट्रीम है, बट वही तो बोल रहा है कि किधर ड्रॉट है किधर ये नहीं है. मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे अगर हम उनको देखेंगे वो बोलता है रेनफॉल है द नीड ऑफ द होल्डिंग रेन वाटर रिजर्वायर. रेन वाटर रिजर्वायर को होल्ड करने के लिए हम लोग करना चाहिए. बराबर है ना? हाँ. सो तो क्वेश्चन इज अबाउट द इम्प्लीकेशन ना, व्हाट यू कैन डू इन फ्यूचर. ओके, इट्स नॉट अबाउट द अगर ये होता है कि रैशनल क्रिटिकल इन्फरेंस का आंसर नहीं होता, तो क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट इम्प्लीकेशंस, व्हाट यू कैन डू इन फ्यूचर. अब ये सब प्रॉब्लम, एक इधर डॉट है एक इधर ये है, मोस्ट ऑफ द अनयूटिलाइज्ड वाटर जा रहा है सी के अंदर जा रहा है, हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे. सो ऑल मींस व्हाट कि इंटरलिंकेज करेंगे तो हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे प्रोबेबली. अ नेटवर्क ऑफ द डैम एंड कैनल शुड बी बिल्ट अक्रॉस द कंट्री फॉर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर. यस, हो सकता है. हाँ. फार्मर शुड बी प्रोवाइडेड इजी लोन्स फॉर डिगिंग द बोरवेल्स. नो. हाँ. So uses of the water and agriculture should be regulated by the law. Uses of the water and agriculture should be regulated by the law. No. कौन सा law आएगा हर चीज में? नहीं. हाँ. Distribution of the river water among the regions should be regulated by the union government. The distribution of river water among the regions should be regulated by the river government. ये भी होगा क्या? No. Okay, तो अभी हमारे पास में ये आ रहा है. As per the UPSC answer key, I think the answer has given to us is B, D and E. But I also have doubt in that. अभी UPSC दे रहा है तो मैं ऐसे बोलूंगा नहीं. बट ठीक है, यहाँ तक ठीक है. बट फार्मर को इजी लोन प्रोवाइड करने चाहिए. फार्मर को पैसे का प्रॉब्लम है ऐसा कहीं मालूम ही नहीं पड़ता है हम लोगों को, ऐसे भी अज्यूम करने के लिए. yes, it will affect, but फिर ऐसा एकदम एक्सट्रीम सोच तो फिर हर चीज में होगी. देन अभी इसने ये भी बोला है कि रिवर वाटर अमंग द रीजन है वो यूनियन गवर्नमेंट नहीं रेगुलेट करना. क्यों? स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी तो उसमें क्या मतलब ऐसा ये नहीं हो पाएगा ना इसके अंदर. तो आंसर जो दिया एक बार यूपीएससी की आप भी चेक कीजिए. द आंसर गिवन इज बी, डी एंड ई. ठीक है, आपका ये ठीक है. अपन हम लोग बोलेंगे कि इजी लोन भी अगर होता है पर यूनियन गवर्नमेंट रेगुलेट करे और बाकी ना करे. और किसने क्या बोला है कि कंट्री के अंदर रिवर यूटिलाइज हो रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट से गलत है और इससे ये है.
एक इधर हम लोग रेगुलेशन के अगेंस्ट में हर बार ऑप्शन लेते हैं, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि नहीं गवर्नमेंट ही व्हाट यू सेड शुड बी, यूनियन गवर्नमेंट ही रेगुलाइज करना चाहिए। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट रेगुलाइज करेंगे तो क्या झगड़े हो गया, ऐसा थोड़ा मुझे ये व्यू इतना प्रॉपर लगता नहीं है। ओके चेक आंसर, आई थिंक इट्स सेट ए है शायद, एक बार देखो। ऑप्शन 1 का आंसर डी जिसमें है वो सेट देखिएगा। ओके सो आई हैव डाउट इन दैट, ये होना नहीं चाहिए था वैसे आंसर इसका बी डी एन ई। ओके अभी यूपीएससी देगा तो बाय द वे यूपीएससी सुप्रीम, बट दैट डज नॉट मीन कि हमेशा ही हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। अब कुछ लॉजिकल तो होना चाहिए। ऐसे अगर मुझे बता इंप्लीकेशन है ठीक है फ्यूचर है, बट ऐसा फ्यूचर पे हम इंप्लाई करते हैं हर चीज में हम इंप्लाई करेंगे ना फिर तो ऑप्शन। फिर इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो बी जो है, अब उन्होंने आंसर क्या किया देखो, उन्होंने बी नहीं लिया, उन्होंने बी लिया नहीं है, सॉरी ओके सॉरी बी लिया है ना उन्होंने। अच्छा मैं वही बोल रहा था 22 का कैसे क्या, ओके 1 मिनट, हाँ 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 मैं वही बोल रहा हूँ ये कैसे क्या आंसर है। हाँ 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 यस हाँ तो देखिएगा, हाँ तो डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पे वाटर सरप्लस है, कहीं पे वाटर के डेफिशिएंट है, ठीक है वाटर कहीं पे सरप्लस आ रहा है, कहीं पे क्या डेफिशिएंट आ रहा है। तो मोस्ट एक्सटर्नल इंप्लीकेशंस क्या होगा, तो व्हाट स्टेप यू कैन शुड इंटरलिंकेज ऑफ द रिवर शुड बी टेकन, बराबर है। नेटवर्क ऑफ डैम्स एंड कैनल बिल्ड होना चाहिए, बराबर है। हाँ इजी लोन्स का यहाँ पे कोई उनको है नहीं, ऐसा बोला है क्या, रेगुलेटेड बाय द लॉ से रेगुलेट होना चाहिए और यूनियन गवर्नमेंट ने होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। यस तो आंसर आता है इजीली, द आंसर इज व्हाट ऑप्शन नंबर 1 ए एंड बी, गलत टिक हो गया था उसमें। हाँ नेक्स्ट वही बोला ऐसे कितना कैसे वेग आंसर दिया है। नेक्स्ट पीपल विल इन्वेस्ट इन एजुकेशन व्हेनेवर दे आर ग्रांटेड द इकोनॉमिक फ्रीडम टू फुल्ली एंजॉय द बेनिफिट्स अगेन, कि लोग तब क्या करेंगे एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे जब उनको इकोनॉमिक फ्रीडम दिया जाएगा। दिस इज फॉर द ऑब्वियस रीजन दैट द रिटर्न ऑन द एजुकेशन इंक्रीजेस एट द लेवल ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम राइजेस। तो इन्वेस्टमेंट जब भी इंक्रीज होता है, जब इकोनॉमिक फ्रीडम क्या होता है बढ़ता है। द पीपल थैंक्स टू द लोअर टैक्स रेट are allowed to retain at higher income and they gain an incremental level of education. It makes sense to invest in education. On other hand, when the government decides to tax the higher incomes of the educated individuals at a higher rates, it makes a very little sense to invest in educating oneself further. The same incentives apply to the parents who decide on whether to invest in a children's education. और सेम इफेक्ट करता है किस पे, पेरेंट्स पे। सो हु डिसाइड ऑन वेदर टू इन्वेस्ट ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं, क्योंकि इस पे भी इफेक्ट करता है। हाँ फ्रीडम, सो इज टॉकिंग अबाउट कि जब आपको फ्रीडम रहेगा, आपको लगेगा कि वहां से इकोनॉमिक फ्रीडम ज्यादा रहेगा, ज्यादा आपको क्या आएगा, इनकम आएगा। ओके सो तब क्या फ्रीडम रहेगा, तो तब लोग क्या करेंगे, एजुकेशन में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। ओके हाँ जब हम देखा जाता है कि ज्यादा इनकम एजुकेटेड लोगों पे जब गवर्नमेंट इम्पोज करती है तो उससे फिर उनको क्या होता है, थोड़ा डिमोरलाइज होता है, बराबर ना, कि फिर क्यों हम नहीं करने का, बराबर, क्योंकि ज्यादा कमाएंगे तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ओके हाँ सो व्हाट इज द assumption have been made, lower tax rate in the country invariably translate into the greater investment in higher education। अगर लो टैक्स रेट रहेगा कंट्री में तो इन्वेस्टमेंट में लोग ज्यादा करेंगे, ठीक है, होल्ड रखते हैं इसको। इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन इंश्योर्स देयर इकोनॉमिक फ्रीडम। अरे बाबा इकोनॉमिक फ्रीडम रहेगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहेगी। एजुकेशन इन्वेस्टमेंट में एजुकेशन करेंगे तो इकोनॉमिक फ्रीडम ज्यादा रहेगा, नहीं है, अरे उल्टा है, एजुकेशन फ्रीडम। व्हेन P implies Q, we have seen ना, P implies Q, that does not mean Q implies P। बोलता है अगर इकोनॉमिक फ्रीडम ज्यादा रहता है तो लोग इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन में, पर एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे इसलिए इकोनॉमिक फ्रीडम ज्यादा रहेगा, ऐसा है क्या? नो, इकोनॉमिक फ्रीडम हैज अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन बिल्डिंग ह्यूमन कैपिटल। इकोनॉमिक फ्रीडम रहेगा तो लोग एजुकेशन में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, मतलब उससे ह्यूमन कैपिटल क्या होगा, ये होगा। तो आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर 3C ओनली। यस
our urban bodies cannot possibly ensure the sustainable delivery of the water to our cities unless financial mechanisms are put in place. Water delivery requires heavy investment in collecting it from the natural sources, treating it to make a potable, and laying a distribution network of the pipes for the delivery of the users. It also requires the investment in the sewerages infrastructure and the sewage treatment plants, so that the sewer can carry the water straight to these plants to ensure that no untreated sewage is discharged back into the natural bodies. If our cities were rich enough to meet intercost, water could be delivered free. They are not. बराबर है. तो हमारे पास भी, इनके पास भी पैसा नहीं है, लोकल बॉडीज के पास में. बराबर है. हाँ, तो व्हाट इज द क्रूशियल मैसेज कन्वेड इन द पैसेज? अर्बन लोकल बॉडी मस्ट रिकवर कॉस्ट थ्रू यूजर चार्जेस. हो सकता है, पैसा नहीं बोल रहा ना. हाँ, अर्बन लोकल बॉडीज आर नॉट इफिशिएंट इनफ टू मीट द वाटर रिक्वायरमेंट इन. और डायरेक्ट इफिशिएंट नहीं है ऐसा बोलेंगे क्या? वाटर शॉर्टेज इन आवर सिटीज इज अ पेरिनियल प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी सॉल्व्ड. अगेन डेफिनेटिव सेंटेंस वी विल रिमूव दैट. ऐसे नेगेटिव ये हो सकता है क्या? नहीं. In the view of the water crisis in our cities, there is urgent need to limit the populations of the cities. Population को लिमिट करो बोला क्या उसने? Better answer is what? तो पैसा नहीं बोलता है तो पैसा नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो जैसे फ्री देके होगा नहीं. ओके, तो बेटर वे क्या है कि इंटर कॉस्ट को मीट नहीं कर सकते ऐसे सब इसके अंदर, तो उसके अंदर फिर बेटर है कि क्या करो, पैसा तो लेना पड़ेगा आपको. श्रीलंका में क्या हुआ? अभी वही हुआ ना, वहां पे सब फ्री कर दिया था उन्होंने. पता है क्या आपको श्रीलंका में क्या हुआ? सब फ्री कर दिया था उन्होंने ये कम में. ओके, सो reference to the above passage, following assumptions have been made. What are the assumptions? Rich cities only can ensure the sustainable delivery of the water. Sustainable delivery of the water in the cities means much more than supplying the water to household. Yes, उससे ज्यादा है ना, बहुत सी चीजें देखनी पड़ती है. बोलता है तो केवल पानी देना ही मतलब वो नहीं है मैनेजमेंट ऑफ द वाटर डिलीवरी. बहुत सी चीजों में से उसको जाना होता है. आंसर टू. हाँ, नेक्स्ट. In India, agriculture still engages about the half of the workforce. About 80% of its farms, small and marginal. Compared to the China, Vietnam, which has experienced fast structural rural transformation, India's story is of the slow transformation. As a result, poverty reduction in India was much slower pace during this compared to the China and Vietnam. India's poverty reduction was slow during the 1988 to 2005, but during 2005 to 2012, it's accelerated dramatically, almost the 3 times faster than during the earlier period. Okay, what did India do during this period? Research said that the relative price scenarios changed significantly in the favor of agriculture in the wake of rising global prices. So, gold prices क्या हुई? Increase हुई. This boosted the private investment in agriculture by more than 50%. As a result, agri growth touched 4%. Okay, during the 4.1 ये क्या है? 4.1% during against the 2.4% in 2007. Net surplus aggregate touches to 25 billion in 2030. A real farm wage rose by the 7% per annum. All led to the unprecedented fall in the poverty. But उससे बाद में क्या हुआ? बोलता है एग्रीगेट टच हो गया. ओके, रियल फार्म वेजेस पर जो है वो कितना परसेंट से हुए? सो ऑल दिस लेड टू द अनप्रेसिडेंटेड फॉल इन द पॉवर्टी. तो इससे क्या हुआ? पॉवर्टी को क्या हुआ? कम हुआ. सो हाउ, तो थोड़ा पॉजिटिव इफेक्ट में पैसेज है. सो व्हाट अजम्पशन हैव बीन मेड? क्या अजम्पशन दिए है इसके अंदर? क्या अजम्पशन है? स्ट्रक्चरल एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन इज इम्पॉसिबल. इम्पॉसिबल बोलते आएगा क्या? नो. अ गुड प्राइस इंसेंटिव कैन ट्रिगर द इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर. करेक्ट है. हाँ. India needs to build a value chain for high value agri products like livestock and the horticulture. Higher global prices in agricultural commodities are essential for India's poverty reduction. Essential. अरे बाबा, question is about the assumptions. मुझे बताओ, हायर ग्लोबल प्राइस होगी तभी इंडिया की पॉवर्टी कम होगी क्या?
वो एक रीजन हो सकता है, बट दैट डज नॉट मीन इट इज एन इसेंशियल। क्वेश्चन देखो ना आप क्या है, ग्लोबल प्राइसेस आपको ये बढ़ेगी तभी ये होगा, ऐसा है क्या? नहीं। हाँ, सो अभी वो क्या हो रहा है, जितना एग्रीकल्चर आपका डेवलप होगा उससे क्या होगा, ये रिडक्स होगा। अभी हम लोगों को सी पे डाउट है, ठीक है, क्योंकि इसका मेंशन ही है ना, हैव वैल्यू एग्री प्रोडक्ट्स। बट देखो एग्रीकल्चर जितना डेवलप होगा उतना आपका क्या होगा, पॉवर्टी कम होगी। वो बोल रहा है व्हाट ही हैज सेड कि जिस तरह से प्रोपोर्शन में एग्रीकल्चर का ग्रोथ हुआ है उस प्रोपोर्शन में पॉवर्टी सडनली क्या हुई है, फॉल हुई है। मतलब एग्रीकल्चर डेवलप होगा तो अगेन व्हेन यू आर टेकिंग हाई वैल्यू एग्रो प्रोडक्ट्स लाइक जो लाइव स्टॉक और हॉर्टिकल्चर है, इसमें भी अगर आप वैल्यू चेन डेवलप करेंगे तो वहां से भी एक तरह से क्या होगा, पॉवर्टी रिड्यूस होगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर बी तो आंसर में रहेगा ही, तो बी और डी, पर डी तो डेफिनेटली नहीं होगा, इट इज नॉट इसेंशियल। ठीक है, हाई ग्लोबल वैल्यूज प्राइसेस जो है एग्रीकल्चर कमोडिटी उससे पॉवर्टी रिड्यूस होती है, बट वी कांट से दैट इट इज इसेंशियल कि वो होगा तो भी, इससे मतलब क्या कि वो होगा तभी ही होगा, ऐसा नहीं है। सो इट्स बेटर वी हैव टू गो अहेड विद द ऑप्शन नंबर 3 बी एंड सी। ओके, इसलिए आंसर क्या होगा, बी एंड सी। व्हाट इज द रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट क्रिटिकल मैसेज ऑफ द पैसेज? क्या क्रिटिकल मैसेज है? इंडिया शुड क्रिएट अ लार्ज स्केल ऑफ फार्म रूरल एम्प्लॉयमेंट टू रिड्यूस द पॉवर्टी इन द नियर फ्यूचर। इंडिया शुड क्रिएट अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीज। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर शुड बी गेट प्रायोरिटी ओवर द पब्लिक। प्राइवेटाइजेशन करो। इंक्लूसिव एग्रीकल्चर ग्रोथ इज अ की टू रिड्यूस द पॉवर्टी। करेक्ट, तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 4।